सपोज जैसे CFA आपने किया, FRM किया, तो इन योर एंटायर करियर जो भी आप देखते हो इनसाइड में, तो आपको क्या लगता है कि कैसे CFA FRM ने हेल्प किया? See, they gave me a lot of credibility. मेरी पहचान बनाई, और जब मैं किसी और से बात कर रहा था, अगर वो लोग भी CFA FRM थे, तो एक वो लेवल ऑफ ट्रस्ट हो जाता है सामने वाले में भी। कुछ एडवाइस देना चाहोगे क्या जो लोग ये कोर्सेज कर रहे हैं, FRM या CFA स्पेसिफिकली? See, this is a controversial advice, but do not do it from the mindset कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी या फिर आप डायरेक्ट फ्रंट ऑफिस या रिसर्च वाले रोल्स में चले जाओगे। जैसे आप डील स्ट्रक्चर कर रहे हो किसी इन्वेस्टर के लिए, तो कैसे क्या होता है वो डील? तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट कंप्लायंस में गया था, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट कंप्लायंस के रोल में बैठ के मैं बड़े बड़े फंड मैनेजर को चैलेंज कर सकता था कि नहीं, आप रूल ब्रीच कर रहे हो और मैं आपका ट्रेड पास नहीं करूँगा। वो एक जो पावर होती है ना, वो भी बहुत इनक्रेडिबल होती है आज की डेट में। Hello everyone, thank you very much for joining in. Hi, this is Ganesh Nayak. We are back with one more podcast for you. We have with us today Yash, and he's going to be talking about his journey into the alternative investment side, and also he's going to be talking about his experience in the corporate part and what is he doing right now. So Yash, thank you very much for joining us. For the benefit of the audience, if you can tell us a brief journey of you in the industry, and what are you doing right now? Thank you, Ganesh, for having me on the podcast. I'm Yash Rungta. I'm a CFA and FRM charter holder. I'll start at the very beginning. So I studied out of NMIMS here in Mumbai, did my BSc Finance. Then I joined a company called WNS. It's one of the largest BPOs in the world. They are listed on NYSE. They have around 50,000 people. There, I went to Bangalore. My client was called Aviva Investors via WNS itself. And I started in the regular middle office job, which is investment compliance. Okay. What is investment compliance? Basically, Aviva is managing thousands of crores of money. Each of that money, investors have given them a mandate that this is how I want my money to be managed. Right. As an investment compliance analyst, I had to look after, okay, is that money being managed according to the rules defined by the investors or not? Okay. So that's where I started my career out of Bangalore. I did that for 1.5 years. I was doing decent work, so that's why Aviva Investors, my clients in London, they called me over to London. Okay. And that's how I got transferred to London in December 2018. By that time, I had not started my CFA or FRM journey at all. Okay. I did not start it in college. I didn't have the time. I went to London. London again, I was in a similar role, did that for 3 years, got bored. So my boss gave me a bigger opportunity to be a senior manager in the transaction reporting space. That was if people think it was a demotion from middle office to back office, but it was actually a very exciting role because it was all oriented with data. Okay. And I was learning coding at the time. So it was a perfect playground environment for me to, apply those coding skills, Python coding skills into that environment. And we were given a project where the timeline was roughly around 3 years to complete. We completed that project in 6 months with automation, a lot of coding and, all the sorts. So saved around £1 million for the firm. And then basically I got bored of that as well. So I went to Bloomberg as a regulatory reporting analyst there, handling client regulatory reporting requirements. I worked there for 6 months. Bloomberg culture is very different, and I couldn't really get on to that pace with the culture. So I returned back to Aviva, this time in a front office role for as an implementation manager on a multi-strategy fund. That fund was around 30,000 crore rupees. And my job there was to, build algos or build that technical infrastructure which would support that technical level of trading in complicated derivative instruments that we're doing. Finally, after a change of heart, we shifted back from UK to India right now. And right now, I'm working on a company called Alt Investor, which is primarily an awareness initiative into alternative investments, because a lot of mis-selling happens in this area to investors right now. A lot of risk is not really told to the investors, and our blog basically aims at disrupting that space in terms of that awareness that think about risk first, returns will always come in later.
And that's what we are trying to teach. Via that, we have got a good subset of investors who trust us, so we help them with managing their alternative investments. Okay. We have built a network of companies who seek our help in terms of how do we launch new products, or how do we communicate these products better to the market. Okay. And then we have a lot of people who, let's say, want to understand about this area, so we help them with, be that the IFA market. So there's a big IFA market in Right. India right now. So these people also want to sell these products, but they don't understand the product. So that's where we help with the communication and training pieces as well. Wonderful. So your decision to start out Alt Investor was primarily started with the content creation. Yep. So my thesis was that, okay, and I started this when I was in London itself, last Okay. year, I think around May. And my thesis was, okay, if I have to go and work in India, how do I get known in India? How do I build a brand around my name or credibility around my name? Right. Some people know me in London in the buy side, but India में कौन जानता है? And तो फिर मैंने बेसिकली चालू किया कि हाँ, इंडिया में एक कुछ, क्योंकि ट्रेड विद पाइथन जो मेरा पुराना एक ब्लॉग था, हाँ. उसमें मेरे को बहुत सक्सेस मिली थी. वो अभी तक भी सबसे वेल रेड ब्लॉग है इन द एल्गो ट्रेडिंग कम्युनिटी इन इंडिया. तो Okay. मैंने बोला वही सेम मॉडल को रेप्लिकेट करके हम ऑल्ट इन्वेस्टर पे लगाते हैं, जहां पे कोई भी कुछ नहीं लिख रहा है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में. एंड दैट बेसिकली टुक ऑफ इन द वे वी वर राइटिंग कंटेंट. वो वैसा कोई नहीं लिख रहा था, तो उसकी Okay. वजह से बहुत अच्छे से वो चल गया. तो दैट वाज द प्रीमाइस ऑफ स्टार्टिंग ऑल्ट इन्वेस्टर. बट उससे वो धीरे धीरे वो सक्सेस मिलने लग गई, तो और रास्ते खुलने लग गए कि और क्या Right. कर सकते, क्या नहीं कर सकते. Okay, wonderful. So एक normal investor के लिए investing into a traditional asset like equity or to a certain extent debt, alternative investment में क्या difference आता है? See, इंडिया में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की बहुत वाइड डेफिनेशन है व्हेन यू कंपेयर इट टू यूएस और यूके यूएस में आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स को बोलोगे कमोडिटी विच इज गोल्ड, रियल एस्टेट या फिर प्राइवेट इक्विटी. ये तीन को मोटा मोटी आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट वहां बोलोगे. इंडिया में बिकॉज इन्वेस्टिंग पब्लिक ही अभी कितनी कम है, भले ही पेनिट्रेशन लास्ट 10 साल में अच्छा खासा बढ़ गया है, लेकिन अभी भी बहुत कम लोग मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं. उनको खाली इक्विटी या म्यूचुअल फंड के बारे में ही मालूम है. Right. क्योंकि उसके अराउंड ही सारी कैंपेनिंग हुई है. म्यूचुअल फंड से ही ये कैंपेन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है. Right. तो उसके अराउंड ही सारी कैंपेनिंग हुई है, जिसकी वजह से लोगों को उसके बारे में ही मालूम है. तो एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड दैट इज कंसिडर्ड एज ऑल्टरनेटिव राइट नाउ. बी दैट कॉर्पोरेट बॉन्ड हो गया कि आपने IIFL का कोई बॉन्ड खरीद लिया है, वो आपको 9% हर साल दे रही है कूपन में या फिर यील्ड में, जो भी है. और या फिर वो हो गया एक प्रॉपर्टी, भले ही आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का टुकड़ा खरीदा है, या फिर आपने कोई फार्म लैंड में इन्वेस्ट किया जहाँ से जो भी उससे सब्जी वगैरह जो भी उगाई जा रही है उससे जो पैसा आ रहा है, तो वो सब आज की डेट में ऑल्टरनेटिव्स हो गए इंडिया में. ओके. बट इन्वेस्टर को क्या रिस्क समझना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इक्विटी में इन्वेस्ट करते हुए या फिर ऑल्टरनेटिव में? ऑल्टरनेटिव्स एनी गिवन डे आर मोर रिस्कियर देन योर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी और डेट. जो या फिर म्यूचुअल फंड्स की बात करें, म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग कैटेगरी है. Right. लेकिन ऑल्टरनेटिव्स में बिकॉज काफी सारे ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आज की डेट में अनरेगुलेटेड है, सेबी के परव्यू के अंदर नहीं आते हैं. right. तो उसके अंदर फ्रॉड का रिस्क भी ज्यादा रहता है, या फिर वो डील कैसे स्ट्रक्चर की गई है उसकी कोई गाइडलाइन नहीं रहती है. तो काफी सारी चीजें अननोन रहती है. तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को अपनी टोटल वेल्थ का 10% से ज्यादा कभी भी ऑल्टरनेटिव्स में डालना नहीं चाहिए. ओके. स्टिक टू ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स. मैं खुद वो ही करता हूँ जहाँ पे मेरा 70 to 75% ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स में ही रहता है पैसा. ओके. बाकी बिकॉज मेरे को थोड़ा ज्यादा मालूम है, 10 से 20% मैं मेरा ऑल्टरनेटिव्स में रखता हूँ, और बाकी 5% लिक्विड कैश में रखता हूँ. ओके. सो अभी अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे, सो ऑन एन एवरेज वो बोलते हैं कि आप 12% या मैक्सिमम 15% आप जनरेट करोगे. ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में ऑन एन एवरेज आप कितना कर सकते हो? गुड क्वेश्चन. तो इसमें ऑफ कोर्स 12% तो फिर आपको करना ही पड़ेगा एक, लेकिन आप जो 12% म्यूचुअल फंड्स में कमाते हो वो लॉन्ग टर्म पे कमाते हो. Right. ऐसा नहीं है कि आप हर साल 12% कंसिस्टेंटली मिलेगा ही. राइट. वो एक 10 साल का एवरेज मान के चलते हैं अपन. इंडेक्स फंड में आपको 12% मिलेगा. ऑल्टरनेटिव्स जनरली अगर डेट बेस्ड ऑल्टरनेटिव की बात करें, जो होती है लीज फाइनेंसिंग हो गई, इनवॉइस डिस्काउंटिंग हो गई, या फिर एग्रीकल्चरल फाइनेंसिंग हो गई, ये सब 3 या 4 साल की मैक्सिमम होती है कोई भी. ओके. तो 3 या 4 साल में मैं ऐसा देखता हूँ कि अगर गवर्नमेंट बॉन्ड जो है अपनी RBI जो निकालती है, उसमें मेरे को 7-7.5% मिल रहा है,
तो मेरे को एटलीस्ट 5% तो उसके ऊपर और मिलना चाहिए, क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स में उतना रिस्क तो है ही, क्योंकि वो अनरेगुलेटेड हो जाता है, या फिर रेगुलेटेड कैटेगरी में भी वो आप एक एक्स्ट्रा रिस्क तो ले ही रहे हो। अगर आप 5% भी एक्स्ट्रा नहीं कमा रहे हो, विच इज अराउंड 12.5%, तो क्या फायदा है? तो फिर आप ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स पे लगे रहो। सो ओनली डिफरेंस कि आप शॉर्ट टर्म में उसको कमा पाओगे, दैट इज अ प्राइमरी। तो शॉर्ट टर्म में आप कोई डेट फंड में, म्यूचुअल फंड, कोई डेट म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालोगे तो आपको रफली अराउंड 7-8% आता है प्री टैक्स। पोस्ट टैक्स हो जाता है 3 या 4% बेस्ड ऑन द टैक्स स्लैब। तो 30% में आप 4% कमा लोगे टैक्स स्लैब में। लेकिन ऑल्टरनेटिव्स में यू विल गेट दैट सेम 8 या 9% आपको निकालना ही पड़ेगा, तो 5% का स्प्रेड हो गया। अगर आप उतना नहीं कर रहे हो तो फिर फायदा नहीं है ऑल्टरनेटिव्स में। आप ऑडियंस के लिए कुछ एक आध एग्जांपल बता सकते हो कि जैसे आप डील स्ट्रक्चर कर रहे हो किसी इन्वेस्टर के लिए, तो कैसे क्या होता है वो डील में? तो काफी तरीके की होती है डेट बेस्ड डील्स, लेकिन एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेते हैं और एक डेट बेस्ड एग्जांपल लेते हैं। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में समझ लो आपके घर के पास एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आ रहा है। वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 100 दुकानें हैं। अब डेवलपर ने तो बना दी और समझ लो दुकानें बेच भी दी या फिर रेंट पे चढ़ा दी। ठीक है, सारी दुकानें रेंट पे चढ़ाई, बेची नहीं है, रेंट पे चढ़ा दी है, तो उसका एक फिक्स रेंटल इनकम मेरे पास आ रहा है। डेवलपर को अपनी लिक्विडिटी को, मतलब उसको एसेट को बेचना है ताकि उसके पास थोड़ी लिक्विडिटी आ जाए। बराबर। ठीक है, तो उसको शायद कोई एकदम बड़ा इन्वेस्टर नहीं मिले कि जाके मैं उसको पूरा एक बड़े अमाउंट पे बेच दूं। तो उसमें क्या आएगा कि 100 छोटे छोटे इन्वेस्टर मिलके 10 लाख 20 लाख रुपए भी पूल करे तो 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उसको मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैंने 10 लाख रुपए डाला और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के थ्रू हम 100 लोगों ने मिलके उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। अब उस प्रॉपर्टी की जो रेंटल इनकम आ रही है वो एज अ रेंटल इनकम मेरे सारे इन्वेस्टर्स को हर महीने रेगुलरली मिलती रहेगी। और जो उस प्रॉपर्टी का कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो रहा है, अगर मैं 10 साल बाद या 5 साल बाद उस प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश करूं तो वो जो इंडेक्सेशन के हिसाब से जो उसको प्रॉफिट होएगा वो भी इन्वेस्टर्स के साथ शेयर हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया कमर्शियल प्रॉपर्टी में, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपकी यील्ड, रेंटल इनकम की जो यील्ड होती है वो अराउंड 6 से 7% तो मिनिमम होनी ही चाहिए और होती है। वेरएज अगर आप खुद का घर खरीदते हो और उसको भाड़े पे चढ़ाते हो तो वो 2 या 3% जितनी होती है। मुंबई में शायद 4 से 5 भी चले जाए, कोई कोई एरिया में, अंधेरी ईस्ट हो गया या फिर लोअर परेल साइड हो गया, बट अदरवाइज या 2 या 3% ही यील्ड मिलती है। तो उससे बेटर हो सकता है अगर आपका खुद का घर नहीं खरीदना हो और अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो तो कमर्शियल प्रॉपर्टी कैन बी अ बेटर एग्जांपल, जहाँ पे आपको यील्ड भी मिल रहा है और कैपिटल अप्रिसिएशन का भी चांस ज्यादा है। तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा जो मैं देता हूँ सबको, तो अभी ईवी चार्जिंग का बहुत ज्यादा वो चल रहा है। बहुत सारी ईवी गाड़ियां रोड पे दिखने लग गई है, तो इनको चार्जिंग की भी जरूरत है। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज कर रही है कि सब जगह मेरे को चार्जिंग स्टेशन वगैरह डालना है, लेकिन एक फास्ट चार्जर को इंस्टॉल करने का 10 लाख रुपए लगता है। तो आज की डेट में 2-3 बड़ी बड़ी कंपनी है, चार्ज जोन करके है, जियो बीपी है और 2-3 और है, नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन चार्ज जोन को आज की डेट में अगर 100 चार्जर लगाना है तो चार्ज जोन में भी फंडेड कंपनी, लेकिन वो अपना फंडिंग कैपिटल ये चार्जर्स में सारा डाल देगी तो उसको डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए जो पैसा होना चाहिए वो उसके पास होगा ही नहीं। तो इसमें क्या आएगा, हमारे जैसे इन्वेस्टर आएंगे, बोलेंगे मैं तेरे को 10 लाख रुपए अपफ्रंट दे देता हूँ, तो ये चार्जर इंस्टॉल कर दे, ये चार्जर मेरे नाम पे रहेगा एसेट। इसका मेरे को मिनिमम इतना आईआरआर या फिर इतना रिटर्न चाहिए और ये 3 या 4 साल तक की डील होगी। 3 या 4 साल बाद आप मेरे से डिप्रिशिएटेड वैल्यू या फिर जो भी होती है वैल्यू उस पर आप खरीद लो, तो तब तक आप मेरे को रेंटल यील्ड देते रहो बेसिकली उसकी, या फिर उसकी जो ऑपरेशनल यील्ड होती है। इसमें डिफॉल्ट होता है तो चार्जर आपके नाम पे होता है, आप किसी दूसरी कंपनी को बेच सकते हो या फिर कुछ कर सकते हो। प्रिंसिपल प्रोटेक्शन कुछ है, लेकिन ये नहीं बोलूंगा कि 100% है। जो आप एक्स्ट्रा रिस्क ले रहे हो उसी का आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। राइट। जो आपने फर्स्ट एग्जांपल दिया उसमें जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑपरेट करके किसी को बीच में एग्जिट करना है तो कैसे होता है? तो जनरली जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होएगा, सपोज इस केस में अगर मैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर हूं जो प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है, ये 100 लोगों ने तो खरीद ली, लेकिन उसकी डे टू डे रनिंग के लिए भी एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर होना चाहिए। बराबर। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर ये देखिएगा किसी को एग्जिट करना है और वो अगर कोई नया बायर ढूंढ पाता है तो वो उसको उसका स्टेक सेल करवा देगा। उसमें बीच में वो शायद हो सकता है 1 या 2% कमीशन खाए। लेकिन वो लिक्विडिटी 30 से 45 दिन में मिल जाती है। अच्छा। 30 से 45 दिन में दूसरा बायर ढूंढना जनरली अगर प्रॉपर्टी अच्छी है तो इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें गवर्नमेंट अभी नया रेगुलेशन लेके आ रही है, SM रीट्स करके, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड रीट।
रीट होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो मार्केट में 3 या 4 बड़े बड़े रीट लिस्टेड है। एम्बेसी का एक है, रहेजा का एक है, माइंड स्पेस का एक रीट है। तो ये लोग बहुत बड़े बड़े डेवलपर्स हैं जिनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी एक रीट में स्ट्रक्चर होकर इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज के बाद इन्वेस्ट कर सकता है। गवर्नमेंट लेकिन रीट बनाने के लिए 500 करोड़ की मिनिमम एसेट्स होने चाहिए। ओके, गवर्नमेंट बोल रही है चलो ये तो ठीक है, लेकिन हमको उसको और छोटा करना है। तो गवर्नमेंट ने बोला 50 से 500 करोड़ के बीच में अगर आपके पास कोई भी एसेट है तो आप उसको एक स्मॉल एंड मीडियम साइज रीट बना के भी मार्केट में उतार सकते हो। तो ये रेगुलेशन आया है 7 मार्च 2024 को ही। सेबी ने एप्लीकेशन इनवाइट करना भी चालू किया। तो ये मार्केट भी, सेबी चेयरपर्सन जो है माधवी पुरी बुच, शी इज वेरी बुलिश कि ये मार्केट बहुत अच्छे से ग्रो होना चाहिए। तो देखते हैं इस मार्केट में भी काफी स्कोप रहेगा। हाँ, रीट्स इंटरनेशनली तो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे ही थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट तो था ही पहले से, लेकिन अगेन यूएस की सबसे बड़ी रीट जो है प्रोलॉजिस रीट, उसका मार्केट कैप रफली अराउंड $120 बिलियन होएगा। इंडिया में ओवरऑल रीट मार्केट $10 बिलियन को भी नहीं वो करता है, लेकिन गिवन द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव, गिवन जो आबादी है हमारी, वो मार्केट बहुत ग्रो होने की पोटेंशियल है रीट की। राइट। और आपने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। फ्रैक्शनल, तो इसके रिलेटेड भी रेगुलेशंस हैं अभी? सो ये एसएम रीट जो है ये फ्रैक्शनल ओनरशिप को ही रेगुलेट करने का तरीका है। ओके। तो एफओपी फ्रैक्शनल ओनरशिप बंद हो जाएगा मोटा मोटी, और एसएम रीट्स उसकी जगह आ जाएगा। बट प्रॉपर्टी शुड बी लिस्टेड, राइट? इट विल बी इन अ ट्रस्ट एंड दैट ट्रस्ट विल बी लिस्टेड एज एन एसएम रीट। ओके, ओके, परफेक्ट। सो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ट्रेड विद पाइथन, जो आप एल्गो वाला कर रहे थे, आपका इंटरेस्ट एल्गोरिथम साइड में कैसे डेवलप हुआ? सी, मेरा माइंड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है अनफॉर्चुनेटली। सो मैंने 11th एंड 12th साइंस की थी, एंड आई वाज मेंट टू गो टू वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस, आईआईटी वाईआईटी सब मैंने दिया था। बट आई हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, मुझे लगा फाइनेंस ही करना चाहिए हमको, तो हम धंधे वाले हैं, क्योंकि आई कम फ्रॉम सूरत, मारवाड़ी बैकग्राउंड, चाचा मामा सब लोग ट्रेडर है, तो ऐसे लगता है चलो ट्रेडिंग ही अपना फोटे होएगा। तो मैं NMIMS में BSc फाइनेंस करने आ गया। बट व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन माय कॉर्पोरेट करियर, मैं हमेशा ये तरीके ढूंढता था कि मैं अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करूं, क्योंकि सब लोग अगर वही चीज कर रहे हैं तो उसमें किसको आगे बढ़ने मिलेगा, वो बहुत वो हो जाता है, क्लैरिटी नहीं मिलती। राइट। तो मैंने देखा मैं बहुत सारे बोरिंग टास्क कर रहा था उधर। कोई एक स्प्रेडशीट समझ लो JP मॉर्गन से आ रही है, उसके ऊपर मेरे को कुछ एनालिसिस करना है और फिर मेरे को मेरी एक इंटरनल रिस्क टीम को भेजना है। मैंने बोला यार इतना बोरिंग काम है, 2 घंटा मेरा दिन का बर्बाद होता है इसमें, और मेरे को कुछ सीखने भी नहीं मिलता है। दैट्स वेयर आई स्टार्टेड लर्निंग कोडिंग, क्योंकि मैंने देखा कि ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। तो मैं पाइथन का नाम आया बाहर ऑनलाइन, मैं बोला पाइथन सीखते हैं। तो यूडेमी पे एक कोर्स परचेज किया, 500 रुपये का कोर्स होता है, परचेज किया। फर्स्ट टाइम तो पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, मैंने बोला हम तो गुरु हो गए पाइथन पे। But then I tried automating that stuff. I couldn't, because language learning is not very easy. Not only your technical language, but आप स्पेनिश भी लर्न कर रहे हो तो आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। That's correct. डेली प्रैक्टिस करोगे तब जाके उसको सीखोगे। तो पहली बार तो किया, हार मान ली, 6 महीने बाद वापस सेम कोर्स किया पूरा रिवीजन के हिसाब से, और फिर इस बार सीरियसली ऑटोमेट करने की कोशिश की। वो फर्स्ट प्रोग्राम ऑटोमेट करने में मेरे को 3 या 4 दिन लग गए। आज के डेट में वो 1 घंटे में कर सकता हूँ, इतना सिंपल प्रोग्राम था। लेकिन वो 3-4 दिन जब लगे तो उसके बाद जो रिजल्ट आया, विच इज 2 घंटे मेरे दिन के सेव होने लग गए। एनुअल बेसिस पे अगर उसको आप नंबर्स टर्म में पुट करो, तब मैं यूके में था, मेरी सैलरी अच्छी थी, तो वो बहुत अच्छा नंबर हो जाता है एक कंपनी के लिए कॉस्ट सेविंग के साथ। राइट। बॉस को तब तो नहीं बताया कि ऑटोमेट कर दिया, बिकॉज खाली बैठा हो तो बॉस को तो नहीं बताया, लेकिन 2-3 और ऐसे तरीके ढूंढे कि जिससे जो मेरे और बोरिंग टास्क है वो ऑटोमेट होने लग जाए। तो समझ लो मैंने मेरे आधे दिन का काम तो ऑटोमेट कर दिया। फिर जाके मैंने बॉस को बताया कि चलो ये सब हो गया है। बॉस भी खुश, टीम वाले भी खुश कि अरे ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज सी, इंडस्ट्री में जब आप घुसते हो तो लोग बहुत स्ट्रेट लाइन में सोचते हैं। जब उनको आप थोड़ा सा होप देते हो ना कि हाँ ऐसे भी सोच सकते हैं, तो आपकी कीमत बढ़ जाती है उधर, और उनके पास भी आइडिया आता है। फिर वो आइडियाज आप इम्प्लीमेंट कर पाते हो तो आपकी कीमत और बढ़ जाती है मार्केट। So that's what we did. तो उसकी वजह से पाइथन पे काफी इंटरेस्ट है। The reason I started building that or writing on that blog was again from a credibility standpoint कि हाँ अभिवा में सबको मालूम है कि मेरे को आता है और मैंने इनके लिए ये किया है, लेकिन बाहर के मार्केट को कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे को ये सब आता है, क्योंकि अभिवा में जो मैंने प्रोजेक्ट किया वो तो मैं बाहर दिखा नहीं सकता हूँ, तो कॉन्फिडेंशियल होता है। बट फिर भी बाहर के मार्केट को मैं कैसे कॉन्फिडेंस दिलाऊं कि मेरे को ये चीज आती है। ओके, ओके। और फिर जब आप एल्गो, जैसे आपने बताया कि अभी आप कंपनीज के लिए एल्गो ट्रेडिंग बना के देते हो, ट्रेड्स
करके देते हो, तो वो एवेन्यू कैसे ओपन हुआ? सो कंपनीज नहीं बोलूंगा मैं, ये इंडिविजुअल्स है इंडियन अच्छा। मार्केट में ही समझ लो। दो तीन छोटी छोटी फॉर्म्स होगी, बुटीक फॉर्म्स जो होती है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फॉर्म, जिनके पास आरआई लाइसेंस होता है, उन लोगों ने समझ लो अपनी कोई ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बनाई होगी। लेकिन ऑफ कोर्स दैट स्ट्रैटेजी इज डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल फैक्टर्स की मार्केट में वॉल्यूम बढ़ गया, या फिर ये टाइम पे एंट्री चाहिए, एग्जिट चाहिए, स्टॉप लॉस ऐसा चाहिए, वो चाहिए। तो ये लोग तो आदमी तो बिठा नहीं सकते 10-10 आदमी ये सब मॉनिटर करे हर एक स्क्रिप्ट पे या फिर हर एक स्टॉक पे। तो वो लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि यश ये हमारी स्ट्रैटेजी है, लाइन बाय लाइन, ये रूल्स ड्रिवन स्ट्रैटेजी, इसको आप कोड कर सकते हो। ओके। तो कई लोग बिफोर कोडिंग दे वांट बैक टेस्टेड रिजल्ट। बैक टेस्टेड रिजल्ट क्या होता है कि आप अगर यही सेम स्ट्रैटेजी को लास्ट 5 साल के डेटा पे लगाते हो तो क्या आप मुनाफा कमा पाते हो कि नहीं। समझे। तो उससे भी उनको आइडिया लग जाता है कि आगे शायद काम करे या ना करे। ऑल्दो बैक टेस्टेड रिजल्ट हमेशा आगे प्रूव नहीं होते, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो वो लोग बेसिकली उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमको कोड करना है कि नहीं करना है। तो बिकॉज आई एम न्यू कोडिंग एंड आई हैव अ बिट ऑफ फाइनेंस बैकग्राउंड, और आई वुड से प्राइमरली फाइनेंस बैकग्राउंड बट अ बिट ऑफ कोडिंग। राइट। तो आई न्यू कि व्हाट विल वर्क व्हाट विल नॉट वर्क, एंड तो फिर मैं क्लाइंट को वो कोड करके स्ट्रैटेजी दे देता था और हम हमारे सर्वर्स पे क्लाउड पे चलाते थे उसको। और जो अभी भी चलती है कुछ कुछ स्ट्रैटेजी जो मार्केट में अभी भी चल रही है। ओके ओके। तो ये हमारा काम होता था मोटा मोटी। ओके। नाउ फॉर न्यू पीपल जो लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में, फाइनेंस में बच्चे करके आ रहे हैं, उनके लिए 2-3 स्पेसिफिक क्वेश्चन। पहला तो कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट साइड में अगर एंटर करना है तो कैसे कर सकते हैं और क्या स्किल सेट चाहिए? तो लाइक आई सेड, ऑल्टरनेटिव्स इंडिया में अगर आप खाली इंडिया की बात कर रहे हो तो बहुत वाइड है फिलहाल। तो डेट मार्केट इंडिया में अभी तक उस स्केल पे बढ़ा नहीं है जितना पोटेंशियल है। तो डेट में जब आप घुसते हो, डेट मार्केट यानी आपका एक बॉन्ड हो गया। बॉन्ड बनाने के लिए बहुत सारे स्किल सेट चाहिए होता है। तो एक बॉन्ड को मार्केट में उतारने के लिए एक मर्चेंट बैंकर चाहिए होता है, जो बेसिकली आपकी कंपनी के एनालिसिस कर रहा है, बुक्स को पढ़ रहा है। तो उसके अंदर आपकी जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने की स्किल होती है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कि अगर वो कंपनी, समझ लो यूनिलीवर मेरे पास आ रही है, यूनिलीवर बोल रही है मेरे को 200 करोड़ मार्केट से उठाना है, तो मेरे को ये देखना है यूनिलीवर की बुक्स में कि आज की डेट में आप 200 करोड़ मार्केट से उठा रहे हो तो आप अगले 5 साल तक पे भी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, क्या रेशियोज है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। उसकी क्या रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है बहुत सारे इंडिया में, तो वो रेटिंग उसको कैसे मिलेगी, तो वो रेटिंग एजेंसी का भी बहुत बड़ा काम हो जाता है कि उसकी सारी एनालिसिस कैसे करनी है, उसका डेट रीपेमेंट स्ट्रक्चर कैसे होगा, डिफॉल्ट होगा तो क्या होगा। तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ओके। सेकंड, इस मार्केट में बिकॉज दिस इज अ न्यू मार्केट, यू नीड टू बी एबल टू सेल अ बॉन्ड। तो एक बॉन्ड सेल करने के लिए आपको वो बॉन्ड को समझाना कैसे है, राइट, वो एक बहुत बड़ी स्किल सेट आज की डेट में। पीपल इन फाइनेंस थिंक दैट इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस, बट more and more of finance as you get enter into it is more about how you can sell that product, because आपने भले ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट बना लियो, अब उसको मार्केट में बेच नहीं पाओगे तो कोई सेंस नहीं है। और तीसरी चीज हो जाती है, आप एनालिसिस फ्रंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते, बट लेट्स से आपको अगर 200 इशूअर्स आपके पास आ रहे हैं, तो वो 200 इशूअर्स को लेट्स से अगर आपके पास आदमी उठाने के लिए नहीं है, आप प्रोग्रामेटिकली कैसे कर सकते हो चीजें। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये एक टेक्निकल स्किल इन टर्म्स ऑफ भी सीखो, भले प्रिलिमिनरी लेवल पे, या फिर अब एआई वगैरह इतना आ रहा है तो फिगर आउट हाउ यू कैन यूज चैट जीपीटी जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो एक खाली उसको प्रॉम्प्ट कैसे करना है, उससे आंसर कैसे निकलवाना है, ये स्किल सेट भी आजकल बहुत चल रहा है। और मेरे हिसाब से सीएफए इंस्टीट्यूट ने पाइथन के लिए भी कुछ करिकुलम डाला है, ऐड किया है, बिकॉज दे रियलाइज कि अब ये स्किल सेट रिक्वायर हो गई है और हर कोई चाहता है कि कुछ थोड़ी लेवल ऑफ टेक्निकल कोडिंग आनी चाहिए। यस, ये बात तो सही है कि आप टेक्निकल सीखते हो तो आप ऑब्वियसली कंपनी का काम भी कम करवाते हो और आपके लिए डिफरेंशिएशन फैक्टर डेफिनेटली बहुत बड़ा। तो लेकिन इसके लिए भी आज के डेट में बहुत सारे फाइनेंस के पीपल हु आर वर्किंग इन फाइनेंस, सो दे वांट टू लर्न समथिंग टेक्निकल, मतलब भले वो पावर बीआई हो जाए, हाँ उसके तरफ तो बड़ी टैबल्यू, हाँ क्लिक बड़ी रहे, तो वो था। अभी अगर सपोज जैसे सीएफए आपने किया, एफआरएम किया, तो इन योर एंटायर करियर जो भी आप देखते हो इनसाइड में, तो आपको क्या लगता है कि कैसे सीएफए एफआरएम ने हेल्प किया? सी दे गेव मी अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी, मेरी पहचान बनाई। और जब मैं किसी और से बात कर रहा था, अगर वो लोग भी सीएफए एफआरएम थे
FRM नहीं, एटलीस्ट CFA थे, तो एक वो लेवल ऑफ ट्रस्ट हो जाता है सामने वाले में भी कि हाँ ये भी वो रास्ते से आया है, तो इसके पास भी वो नॉलेज बेसिक है। ऐसा नहीं है कि मैं इससे बात करके मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और ये यूके मार्केट में बहुत प्रेलेवेंट है। यूके में CFA की बहुत ज्यादा इज्जत की जाती है, बिकॉज वहाँ पे ज्यादा लोग CFA नहीं बन पाते हैं, बिकॉज वहाँ पे टाइम ही नहीं होता है लोगों के पास अपने कॉर्पोरेट करियर, घरेलू काम सब मैनेज करने के अलावा ज्यादा टाइम नहीं बच पाता है। तो उधर बहुत बड़ी बात हो जाती है। इंडिया में एक्चुअली स्टूडेंट्स के पास बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, विच इज देयर फैमिलीज who are helping them day in day out to make them study or give them the time to study. But एक वो बेस हो जाता है क्रेडिबिलिटी। सेकंड इज इट गिव्स यू दैट बेस नॉलेज जो आपको चाहिए कोई भी चीज को फाइनेंशियल मार्केट में समझने के लिए। नाउ मैं अकाउंटिंग साइड पे इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन आज की डेट में मेरे को कोई बोले कि इंड AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये है, US GAAP अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये है, तो मुझे बेसिक नॉलेज है कि वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली। yes. तो मुझे मालूम है कि हाँ ये चीजें मार्केट में होती है और ये चीजें जरूरी है। तो कोई मेरे को आके बोलेगा तो मैं इग्नोरेंट नहीं रहूंगा कि ये क्या है। तो एक बेस नॉलेज जो आपको दे देता है मार्केट में उतरने के लिए, वो अच्छी चीज है। और तो आई वुड से क्रेडिबिलिटी एंड दैट बेस नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आप उसको कैसे अपने इंटरव्यूज में या फिर अपनी जॉब पे कैसे अप्लाई कर पाते हो, वो सबके लिए अलग अलग होता है, क्योंकि फाइनेंस इज अ वेरी वाइड फील्ड। इट्स नॉट अबाउट रिसर्च एनालिसिस। अब जैसे ही मैंने बोला, एक ट्रेड सिस्टम में एग्जीक्यूट होता है, उसके पीछे कम से कम 20 टीम बैठी है। एसेट प्राइसिंग टीम है, वैल्यूएशन की टीम है, रिकंसिलिएशन की टीम है, डेटा मैनेजमेंट की टीम है, इन्वेस्टमेंट कंप्लायंस की टीम है। बहुत सारी टीम होती है और सबके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली जो रिसर्च एनालिस्ट ने रिपोर्ट बनाई उसी का फंक्शन इंपॉर्टेंट है। सब काम इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या होता है कि बहुत लोग ये सर्टिफिकेशंस कर तो रहे हैं और उनको इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट इज व्हाट वी आर आल्सो ट्राइंग टू डू थ्रू दीस पॉडकास्ट। जैसे लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक में जाना, उनको पता है कि सिर्फ M&A हो रहा है। करेक्ट। सिर्फ यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो वो जो गैप है अभी नॉलेज का, उनकी भी गलती नहीं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन नहीं है। करेक्ट। कि ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, ट्रेडिंग में कितना काम है, सपोर्ट में क्या हो रहा है, रिस्क में क्या हो रहा है। एवरीबडी वांट्स टू गेट इनटू दैट कोर रोल, बट जनरली ऐसा होता है कि आपको कोई वहां पे डायरेक्टली देगा भी नहीं। करेक्ट। आपको एंट्री बेसिक लेवल पे करनी पड़ेगी, देन यू हैव टू प्रूव 100% वैसे। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट, आप कुछ एडवाइस देना चाहोगे क्या जो लोग ये कोर्सेज कर रहे हैं, FRM या CFA specifically? See, this is a controversial advice, but do not do it from the mindset कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी या फिर आप डायरेक्ट फ्रंट ऑफिस या रिसर्च वाले रोल्स में चले जाओगे, क्योंकि ऐसा 90% ऑफ केसेस में नहीं होगा। 10% केसेस जो हाँ एक्सेप्शनल है, वो कुछ और भी कर रहे हैं साथ में CFA वगैरह के साथ, वो लोग अपना इंटरव्यू में एक जमा पाएंगे कि हाँ मेरे को आता है और आई एम केपेबल। बट 90% केसेस में वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनरली वो नॉलेज जो एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो कोर्सेज के थ्रू नहीं आ सकती। मैंने बोला जैसे वो बेस अच्छे से सेट कर देगा आपका, आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे ले आएगा बाकी लोगों के साथ, लेकिन उसके आगे जो होता है वो एक्सपीरियंस होता है सब कुछ। तो डो नॉट डू इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी या बहुत वेल पेइंग जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको वो 6-7 साल मार्केट में उतारने ही पड़ेंगे, भले ही वो रिसर्च या फिर वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रोल्स में नहीं हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सपोर्टिंग रोल्स हो, लेकिन उनमें भी बहुत ज्यादा कुछ है सीखने। आप बिलीव नहीं करो, मैंने तो मेरा करियर उनके थ्रू ही बनाया। मैंने डिफरेंस वहीं पे मेक किया, जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट कंप्लायंस में गया था, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट कंप्लायंस के रोल में बैठ के मैं बड़े बड़े फंड मैनेजर को चैलेंज कर सकता था कि नहीं आप रूल ब्रीच कर रहे हो और मैं आपका ट्रेड पास नहीं करूंगा। वो एक जो पावर होती है ना, वो भी बहुत इनक्रेडिबल होती है आज की डेट में। तो हर रोल अच्छा होता है मेरे हिसाब से तो। हाँ, बिकॉज जैसे भी इन्वेस्टमेंट कंप्लायंस का जो आपने रोल बताया, फिर ट्रांजैक्शनल रिपोर्टिंग का रोल है, ये बाहर पता नहीं है लोग नहीं, जब उनको लगता है कि यार कोई बैक ऑफिस का काम है। हाँ। मैं ये नहीं करने के लिए मैंने CFA नहीं किया था, राइट। बट जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक में प्रोडक्ट कंट्रोल का भी एक रोल है, जहाँ पे बहुत सारे CFA FRMs को लोग हायर करते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोलर का रोल है, FP&A बहुत अभी बूम हो रहा है। करेक्ट। तो वहाँ पे भी रिक्वायरमेंट्स है, बिल्कुल वहाँ पे भी जॉब्स है। तो ये ऑडियंस के लिए भी एक अच्छा पर्सपेक्टिव है कि आप एंट्री आपको करनी है, देन आपको रास्ते मिलेंगे बेसिकली। डोंट गेट टू फसी अबाउट द टॉप रोल। टॉप रोल ऐसे नहीं मिलेगा।
और कोई किसी दोस्त को मिल भी जाता है तो ठीक है, उसकी ट्रेजेक्ट्री अलग है। लाइफ में कोई डिफाइंड सिलेबस है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि सब एक ही पाथ पे जाएंगे। Right. मैं सबको यही बोलता हूँ, सबका अलग अलग पाथ होएगा। आपको वहां पे पहुंचना है तो आप पहुंच जाओगे जैसे जैसे करके। राइट। लेकिन आपको कोई और दूसरे रोल भी मिलते हैं, इवन इफ दैट इज बैक ऑफिस, मिडिल ऑफिस, अब घुसो तो सही। आप जब आगे टॉप पे पहुंच जाओगे, आपको अगर मालूम होगा बैक मिडिल कैसे फंक्शन कर रहा है, तो मे बी विल बी एबल टू मेक स्मार्टर डिसीजंस, हु नोस। And would you suppose there is a candidate now he's thinking between joining a big organization and a boutique firm, तो क्या डिफरेंस हो सकता है मतलब वर्किंग में, अगर आप उनको थोड़ा गाइड कर सके? डिपेंड करता है आप किस रोल में जा रहे हो, उस पर भी डिपेंड करेगा। हाँ, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में देयर विल बी कंपटीशन फॉर योरसेल्फ टू प्रूव कि आप कैसे स्टैंड आउट करते हो। अगर आपको ऊपर धीरे धीरे बढ़ना है, ग्रोथ थोड़ा स्लो हो सकता है। वेयर बुटीक में, अगर बुटीक में आप थोड़ा सा भी अच्छा डिफरेंस लेके आ पाते हो और फर्म भी ग्रो कर पाती है उसकी वजह से, तो मे बी आपकी ग्रोथ रेट भी ज्यादा हो सकती है। दैट बीइंग सेड, बुटीक में एक प्रोसेस ड्रिवन काम कैसे चलाए जाते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाए जाते हैं, उसके बारे में आपको सीखने मिलता है, जो एक बहुत बड़ी स्किल सेट है आपके। जैसे जैसे आप करियर में बढ़ते हो बहुत काम आती है कि हाँ, आप एसओपीज, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कैसे बना पाते हो, एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स कैसे बना पाते हो, क्योंकि ये चीजें छोटी कंपनीज मिस आउट कर जाती है, जिसकी वजह से कभी काम मिस हो जाता है, कभी कुछ मिस हो जाता है, क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है। तो वो चीज आप बड़ी कंपनी में जाके सीख सकते हो, और फिर मे बी कम टू अ स्मॉलर फर्म एंड क्रिएट दैट डिफरेंस वाया व्हाट यू हैव लर्नड एट अ बिगर फर्म। राइट। नाउ समबडी हु हैज डन एनी ऑफ दीस सर्टिफिकेशंस एंड 5-6 इयर्स हो चुके हैं, अब वो इंडस्ट्री में उसको भी नेक्स्ट लीप लेनी है, तो क्या करना चाहिए आइडियली आपके हिसाब से? टेक्निकल स्किल सीखो एक, ओके। कोडिंग वोडिंग, या फिर एनी सॉर्ट ऑफ एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, बी दैट टैबलू, पावर बीआई, क्लिक सेंस करके है। अ लॉट ऑफ पीपल हु कैन लेट्स से अंडरस्टैंड डेटा, कि डेटा को मेरे को कैसे रिप्रेजेंट करना है और वो डेटा से मेरे को क्या इंटरप्रेट करना है, वो स्किल सेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, विच इज डेटा एनालिटिक्स स्किल सेट एट द एंड ऑफ द डे। अगर वो स्किल सेट भी आप निकाल पाते हो, तो आप अपने डेली के बोरिंग काम में भी उससे कुछ डिफरेंस लेके आ सकते हो, और वो डिफरेंस आप लेके आओगे तो लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे धीरे धीरे। राइट। तो फिगर आउट सम लेवल ऑफ एनालिटिक्स स्किल, be that coding or be that interpretation of data, or be that even using how to use chat gpt properly. Okay. Even that is very important. Like in my right now content creation work, I basically take a lot of help from chat gpt. मेरे को ये आर्टिकल समराइज करके दो, या फिर इतनी 20 पेज का रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट है, इसमें से मेरे को क्या की पॉइंटर्स पढ़ने चाहिए वो बताओ। Okay. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विच इज स्मार्ट वेज ऑफ वर्किंग। आपने 20 पेज पढ़ने में टाइम बर्बाद नहीं किया ना, आपने जो मेन 2-3 चीजें चाहिए थी Right. आपको, आपने वो पढ़ी, आपने काम डिलीवर जल्दी किया, you will be seen better in your whatever world you are in. Because across the framework, what I am seeing right now is a lot of working professional, irrespective of FRM CFA, के 5-7 years के बाद they have realized कि I'm stuck, कुछ growth ही नहीं हो रही है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। That's the reason I think so upskilling has become a trend now in India, कि लोग अपस्किलिंग बहुत हैवी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। और लेकिन अपस्किलिंग में एक जो प्रॉब्लम जो मुझे दिखती है कि लोग ज्यादा टेक, जैसे आपने बोला टेक्निकली है, सॉफ्ट स्किल पे ग्रो नहीं कर रहे। अच्छा। सो फॉर एग्जांपल जैसे टीम मैनेज करना, आपने जैसे हायरिंग भी की है लंदन साइड में, तो सॉफ्ट स्किल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, या पीपल मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, जैसे आप 10 इयर्स पे पहुंच जाते हो करियर में, तो उसके ऊपर आप कुछ बोल सकते हो, बता सकते हो? See, I was one of the youngest managers there at Aviva. मैं तब 26 साल का था जब मेरे को टीम मैनेज करने के लिए दी गई थी, एंड मेरे अंडर 5 लोग थे। 5 में से 3 30+ थे, एंड 2 लोग 27-28 के थे, roughly around, मेरे से बड़े ही थे, एंड आई हैड टू गिव देम द वर्क दे वर डूइंग, और had to manage that team. So it's incredibly difficult, because उसमें से 3 लोग अंडर परफॉर्म कर रहे थे, तो we had to ultimately let them go as well. Everything that worked for me was कि how do I communicate and how do I be respectful. सामने वाले भले ही काम गंदा कर रहे हो, लेकिन how do you communicate that कि आप गंदा काम कर रहे हो, and then also show them कि आप ऐसे improve कर सकते हो, and then also define a framework उसको measure करने के लिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है, क्योंकि वही चीज़ फिर आप will help you make that decision whether to let them go or whether to keep them also. Right. तो soft skills के लिए I am not sure if there's a somebody can learn it via course or something. It happens to you over time, via life, I would say.
when a difficult situation is thrown at you, you'll probably get more confident once you have dealt with it. उस टाइम सॉल्व करते समय बहुत डर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आई एम श्योर वो आप सीख जाओगे. बेसिकली ये मैं क्यों आपको पूछ रहा था, बिकॉज जैसे जैसे आप करियर में आगे बढ़ जाते हो, 10 साल इस लेवल पे पहुंचते हो, तो ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चालू हो जाती है. होती है, क्योंकि आप मैनेजरियल लेवल पे इट्स नॉट अबाउट योर टेक्निकल स्किल्स एनीमोर, Right. बिकॉज आप वहाँ वो जर्नी से ऑलरेडी आ चुके हो. इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू डू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज एट द एंड. अगर आपकी जो टीम है, दैट्स basically, let's not call them resources, but how do you help your colleagues grow in their careers also. आपके लिए, क्योंकि अच्छा बॉस कौन होता है? जो आपके करियर के लिए भी देख रहा है, राइट, और आपको अच्छा इंटरेस्टिंग काम भी दे रहा है, आपकी कॉम्पेंसेशन के बारे में भी देख रहा है, तो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में देख रहा है. वो होलिस्टिक डेवलपमेंट में आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए, और नॉर्मल वाली जो इंटेलिजेंस है वो भी होनी चाहिए. EQ एंड IQ बोथ होना चाहिए. EQ, yes. EQ is developed over time. Some people are not structured or brain wired in that way कि EQ बहुत अच्छा हो, but that's okay. I mean, maybe they are not meant to do that. They'll never enjoy being a manager. Right. But it's something that you have to constantly, or you have to consciously decide that, and that decision comes over time. Till that time, जो 10 साल तक का पाथ है वो सबके लिए मोटा मोटी सेम ही होता है. टेक्निकल करो, अपने कोर रोल्स पे ज्यादा फोकस. कुछ ना कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन हर किसी के करियर में आती है, वो आप कैसे हैंडल करते हो, कॉन्शियसली उसके बारे में कैसे सोचते हो, उससे आपको आइडिया लगने लग जाता है कि आपके क्या प्रेफरेंसेस और आप किस रोल के लिए अच्छे हो और आपको क्या चीज़ों पे काम करना है, वो कॉन्शियसली होता है. वंडरफुल, परफेक्ट. सो थैंक यू यश, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस. एंड ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ऑडियंस को भी टू अंडरस्टैंड न्यू एरियाज, जैसे हमारा डिस्कशन चल रहा था ऑल्टरनेटिव investment side, and also at a broader career goals that you should keep. So thank you very much for taking out time. Thank you, Ganesh. Thank you for inviting me. Thank you.